آپ کو بتائیں کہ افغان بستی کی زمین واگزار کرانے کا معاملہ اب تک 1200 سے زائد گھر مسمار اور 60 ایکڑ اراضی واگزار کرا لی گئی۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس سندھ امیر فضل اویسی کا کہنا ہے کہ افغان بستی میں ڈپٹی کمشنر ویسٹ اور ایم ڈی اے کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جمعے تک ساتھ تھے، دوبارہ کہا جائے گا تو آپریشن میں حصہ لیں گے۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں افغان بستی کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری۔ 4 روزہ آپریشن کے دوران 1200 مکانات مسمار، 60 ایکڑ اراضی واگزار۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ فورس امیر فضل اویسی کا کہنا ہے کہ ایم ڈی اے اور ڈپٹی کمشنر ویسٹ کے ساتھ آپریشن کیا۔ جمعے تک کارروائی کا لیٹر لکھا گیا تھا، اگر مزید کہا گیا تو آپریشن میں ساتھ دیں گے۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کے پاس 1800 اہلکار اور 18 سے زائد گاڑیاں ہیں۔ اور ہمارے پاس جو گاڑیوں کی تعداد ہے اس وقت 18 ہے، لیکن دے آر ویری اولڈ بیکاز ہم نے 2012 کے بعد ایڈیشن نہیں کی، اور گورنمنٹ از ورکنگ آن دس کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ہم ابھی ایڈیشن شروع کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں آپریشن کی آپ نے بات کی کہ افغان بستی کا جو آپریشن ہوا ہے دیٹ از لیڈ بائی پرائمریلی لیڈ بائی دی ڈی سی ویسٹ اور ایم ڈی اے کی ٹیم جو ہے۔ ہم نے وہاں پہ تقریباً 1200 ڈیمولیشنز کروائی ہیں ود دی سپورٹ آف پولیس اینڈ رینجرز۔ اینٹی انکروچمنٹ فورس کو کراچی میں 2 زونز ایسٹ اور ویسٹ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کی تجاوزات کی ایف آئی آر انہی کے پاس درج ہوتی ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ شہر قائد میں سیوریج کا نظام درہم برہم کورنگی الہی روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ شہری کہتے ہیں کہ عرصے سے علاقے میں پانی جمع ہے، دفتروں کے لیے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ شہر قائد میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ سیوریج کا پانی انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت دینے لگا۔ کورنگی الہی روڈ تالاب بن گیا، پانی جمع ہونے کے باعث شہری پریشان، کہتے ہیں تعفن نے جینا دھوبر کر دیا۔ گندگی کے باعث بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، عرصے سے سڑک پر پانی جمع ہے۔ میرا کام ہے کورنگی کے اندر نا، چمڑا منڈی کے اندر، یہ ہمارا روز کا راستہ ہے۔ جب سے بارشیں ہوئی ہیں، تقریباً 19 اگست کو پہلی بارش ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد سے یہ سچویشن یہاں پر ہے۔ یہاں پہ کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ کوئی اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روز یہاں سے آنے جانے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے، کہا انتظامیہ کو چاہیے فوری ایکشن لیا جائے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکلات، اور لگ بھگ 3 مہینے ہو گئے یہاں پہ پانی ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بہت پرابلم ہوتی ہے، کاروبار میں بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہم لوگ، پر یہ حکمران دیکھتے ہی نہیں، ہمارے جو ہے یہ لوگ دیکھتے ہی نہیں کچھ بھی، بس آتے ہیں دیکھ بھاگ کے چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ گندگی کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے مختلف سیکٹرز کو آپس میں جوڑنے والا شاہ محمد روڈ 3 برس سے تباہی کا شکار ہے۔ انتظامیہ کے غفلت کے باعث سڑک گڑھوں، مٹی اور ٹریفک مسائل کا گڑھ بن چکی ہے۔ تفصیلات رضوان احمد کی رپورٹ۔ ہر طرف گڑھے، مٹی کے تودے، گرد و غبار اور اچھلتی کودتی گاڑیاں، یہ مناظر ہیں سب سے بڑے صنعتی علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا کے شاہ محمد روڈ کے۔ وہ اہم شاہراہ ہے جو انڈسٹریل ایریا کے 70% علاقے کو آپس میں جوڑتی ہے، مگر پچھلے 3 سال سے اس کی حالت زار نہ صرف شہریوں کے لیے اذیت بن چکی ہے بلکہ صنعت کاروں کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ سے گزرنا ایک عذاب بن چکا ہے۔ گرد و غبار کے باعث لوگ سانس، کھانسی اور دمے جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ سر بہت برا حال ہو جاتا ہے، کیچڑ پانی ہو جاتا ہے، بغیر بارشوں کے بھی بہت دھول مٹی ہے، گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں ہماری دھول مٹی کی وجہ سے، ہمارے اندر بھی دھول مٹی بہت جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ یہاں روز ٹریفک جام رہتا ہے، گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں اور مٹی سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ 3 سال ہو گئے کسی نے مرمت نہیں کی۔ پریشانی ہے، ادھر ڈکیٹی ہوتی ہے، دھول مٹی ہے، ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی 2 بار چھینا گیا موبائل یہاں سے، تیسری بار ابھی ہیں ادھر کھڑے میں۔ گندا ہوتا ہے نا، مٹی ہے، کھڈے ہیں، گاڑیاں پنچر ہوتی ہیں، ٹوب ٹائر پھٹ جاتا ہے ادھر۔ دوسری جانب رات کے اوقات میں خراب سڑکوں کے باعث اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مختلف وزراء اور شخصیات کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقاتیں۔ ناصر حسین شاہ نے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ سعید غنی، امجد، ایڈوکیٹ سلمان عبداللہ مراد اور ڈاکٹر ندیم قمر نے بھی ملاقاتیں کی۔ ادبی حوالے سے فاضل جمیلی نے اپنے شعری مجموعہ گمنام آدمی کا بیان پیش کیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز بتائیے گا۔ جی ہاں، بلاول ہاؤس میں آج کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے صوبائی وزراء نے ملاقات کی ہے
जिनमें सैयद नासिर हुसैन शाह ने बल्दियाती उमूर पर ब्रीफिंग दी, जबकि सईद गनी ने महकमा मेहनत के बारे में उनको बताया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से पूरी तफसीलात से उनको आगाह किया, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के जो सदर हैं पीपल्स पार्टी के अमजद एडवोकेट से भी बिलावल भुट्टो जरदारी, जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के अलावा कराची प्रेस क्लब सदर फाजिल जमीली ने मुलाकात की है, अपनी किताब पेश की है, प्रेस क्लब के उमूर पर भी गुफ्तगू। आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं अहम मुलाकात के हवाले से कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से दीगर वज़रा की मुलाकातें हुई हैं। शहर कायद में मच्छर बेकाबू, शहरी मलेरिया और डेंगू के रहमो करम पर हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट स्प्रे मुहिम शुरू करने में नाकाम रहा। लाखों रुपए के बजट के बावजूद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान खामोशी का इख्तियार कर रहे हुए हैं। रवा साल कराची में डेंगू के 590 केसेस और 2 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। डॉक्टर साकिब शेख का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे मुहिम भी जारी है। मज़ीद बात कर लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद की आवाम मच्छरों के रहम करम पर हैं और मच्छरों का जो ये मौसम शुरू हो चुका है, इनकी अफजाइश का मौसम शुरू हो चुका है, जिसके बावजूद भी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर साकिब शेख और उसके मातहत कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान हैं वो स्प्रे मुहिम शुरू नहीं करा रहे, जबकि इस हवाले से लाखों रुपए का बजट भी इनके पास मौजूद है। इसके बावजूद भी स्प्रे मुहिम नहीं कराई जा रही और रोजाना की बुनियादों पर जो है दर्जनों अफराद डेंगू मलेरिया के मुश्तबा केसेज जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ अस्पतालों में अभी भी मुतअद्दिद मरीज जो है वो मलेरिया और डेंगू के जेर इलाज है। तो इस हवाले से तिबी माहिरीन का कहना है कि मच्छरों का ये मौसम है तो अवाम को भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, लेकिन महकमा सेहत का जो डिपार्टमेंट है जिसका काम है मच्छर मारे स्प्रे मुहिम शुरू करे, लेकिन ये नाकाम हो चुका है। तमाम डिस्ट्रिक्ट खामोश तमाशाई बन चुके हैं, DHOs स्प्रे मुहिम नहीं करा रहे और इस हवाले से जो है रवां साल की अगर बात करें तो रवां साल के दौरान 2 अफराद जो हैं वो ऑफिशियल तौर पर महकमा सेहत के मुताबिक 2 अफराद इंतकाल कर चुके हैं डेंगू से, जबकि इसके अलावा 590 अफराद जो है वो डेंगू के शिकार हुए जिनमें डेंगू बुखार की तस्दीक हुई, जबकि इसके अलावा जो है अभी भी मुतअद्दिद अफराद जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं, जबकि इसके अलावा DHOs जो है वो डेंगू पर काबू पाने में नाकाम है। इस हवाले से हमारी बात हुई है डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर साकिब शेख से, तो उनका कहना है कि ये VVD का जो डिपार्टमेंट है हैदराबाद में उनके माता है जो DHOs हैं वो वहाँ पे स्प्रे मुहिम कराते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तमाम DHOs को उन्होंने भी हिदायत दी है कि तमाम जिलों में स्प्रे मुहिम शुरू की जाए ताकि मच्छरों की अफजाइश कम हो सके। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि आवाम को चाहिए कि सुबह व शाम अपनी मदद आपके तहत भी घरों के अंदर स्प्रे करें और घरों के अंदर जो है जो जालियां हैं वो भी लगाएं ताकि मजीद मच्छरों की अफजाइश ना हो सके। जबकि इसके अलावा कराची के मुतअद्दिद अस्पतालों में रोजाना की बुनियादों पर मुश्तबा केसेज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है, तो मुतलका ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू करें ताकि मच्छरों की अफजाइश का खात्मा हो सके। जी इब्राहिम रिंद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अदालत के हुक्म पर महकमा सेहत ने मुख्तलिफ अस्पतालों को अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया है, जिसके बाद से शहर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। मरीजों का कहना है कि वो महंगी अद्वियात बाहर से खरीदने के मुतहम्मिल नहीं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। कानून के मुताबिक टेंडर्स न होने पर अदालत के अहकामात की रोशनी में महकमा सेहत ने अस्पतालों को अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया, जिसके नतीजे में सिविल, जिना, लियारी, कतर, सऊदाबाद और लियाकताबाद समेत शहर के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। मरीजों और तीमारदारों को मतलूबा अद्वियात अस्पताल से ना मिलने पर उन्हें बाहर से महंगे दामों खरीदना पड़ रहा है, जो गरीब और नादार तबके के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। मरीजों का कहना है कि वो गरीब हैं, बाहर से अद्वियात नहीं खरीद सकते। हुकूमत फौरी तौर पर अद्वियात का बंदोबस्त करे। 2-3 रुपए वाली टेबलेट है वो दे रहे हैं, बाकी जो महंगी है वो बाहर से अफोर्ड करे। अगर बाहर से अफोर्ड करना होता तो गवर्नमेंट में क्यों आते? तो या तो फंड आ रहा है इनकी जेब में जा रहा है या तो फिर फंड आ नहीं रहा, दोनों में से कोई मसला है। दवाइयाँ लिखी हैं जो कि मजीद बाहर से मिलेंगी, अब हम गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आ रहे हैं टेस्ट कराने आ रहे हैं, ना टेस्ट किया जा रहा है ना कुछ किया जा रहा है, बस हुजूर आ रहा है कभी इधर जाओ कभी इधर, चल नहीं पा रहा इंसान, लेकिन उनको दौड़ा रहा है, जाओ इधर जाओ तो उधर जाओ उधर जाओ, ये हो रहा है।
लियाकताबाद अस्पताल के MS डॉक्टर अतीकुर रहमान कुरैशी कहते हैं कि महकमा सेहत के हुक्म के बायस फिलहाल नई खरीदारी नहीं हो रही, अलबत्ता अस्पताल में मौजूद दस्तयाब अद्वियात मरीजों को फराहम की जा रही हैं। अभी तो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन जो है हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमें ये था कि अभी परचेजिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम अभी पेशेंट को दे रहे हैं। अभी आगे चल के हो सकता है कि जो ये अभी कोर्ट का एक ऑर्डर आया है हमारे पास कि जी आप अभी कुछ नहीं ले सकते, कुछ कंपनियों ने शायद कोई एतराज़ किया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सॉल्व हो जाएगा, गवर्नमेंट इसको टेकेगी जल्दी इमीडिएटली, तो जैसे ही हल हो जाएगा तो हम फिर परचेजिंग के प्रोसेस में भी चले जाएंगे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबिलिटी है। दूसरी जानिब अस्पतालों में आने वाले मरीज और उनके अहल खाना का कहना है कि जो अद्वियात अस्पतालों से जारी की जा रही हैं उन पर सख्त निगरानी की जरूरत है ताकि ये वाकई मुस्तहिक मरीजों तक पहुंच सके। साइट एरिया बनारस चौक के करीब फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 वाटर बाउंसर्स ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री के बेसमेंट में फोम, गत्ता और बिजली के तार मौजूद थे। जगह न होने के बाद दीवार तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में। शहर कायद में अलग सुबह एक और फैक्ट्री आग की लपेट में आ गई। साइट एरिया बनारस चौक के करीब वाक़ फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। धुआं फिजा में फैल गया और इलाके में खौफ व हरास की फिजा कायम हो गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 वाटर बाउंसर्स ने 4 घंटे की मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर इरफान अली के मुताबिक बेसमेंट में फोम, गत्ता और बिजली के तार मौजूद थे। अंदर दाखिल होने की जगह नहीं थी, जिसके बाइस दीवार तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। धुआं बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। दीवार तोड़ने की जरूरत इसलिए पेश आई है क्योंकि ये फोम की फैक्ट्री है। इसमें हमें सीटा फायर यानी एग्जैक्ट पॉइंट का पता नहीं चल रहा कि फायर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अगर हम अपनी टीम को अंदर भेजें तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो जैसे हमें इंशाल्लाह वेल पॉइंट मिलेगी तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। रिहायशियों ने बताया कि यहाँ रात के वक्त मंशियात के आदी लोग आते हैं, सामान चोरी भी होता रहता है। आग सुबह 4-5 बजे लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड को इत्तला देर से दी गई। इधर बैठे होते हैं नशेई लोग जो आइस पीते हैं, चर्स वगैरह पीते हैं, यहाँ बैठते हैं, जो तारे वगैरह चुन के इलाके से यहाँ जलाते हैं। और इंतजामिया से भी हमने कितनी मरतबा बोले कि यहाँ जो ये नशेई लोग आते हैं, चोर वगैरह आते हैं, यहाँ बैठते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कूलिंग का अमल मुकम्मल करने के बाद फैक्ट्री को क्लियर करार दिया गया, जबकि बेसमेंट में मौजूद सामान, फोम और तारें जलकर राख हो गईं। कैमरामैन हारिस के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। स्मगलशुदा भारतीय गुटखा और मुसरे सेहत छालिया से मुल्क को सालाना अरबों रुपए का नुकसान का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक हर माह 450 से ज़ायद कंटेनर्स स्मगल किए जाते हैं, जबकि कानूनी तौर पर सिर्फ 50 कंटेनर्स की इजाज़त है। हर स्मगल कंटेनर पर 40 से 50 लाख रुपए तक की करप्शन भी सामने आई है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। कराची की बंदरगाह से लेकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक स्मगल शुदा भारतीय गुटखा और मजरे सेहत छालिया का कारोबार जोरों पर सालाना अरबों रुपए के नुकसान के साथ साथ अवाम की सेहत भी दाव पर लग गई। ज़राए के मुताबिक कस्टम्स हुकाम की मुबैना मिली भगत से हर माह 450 से जायद कंटेनर्स मुल्क में मजरे सेहत छालिया ला रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पर सिर्फ 50 कंटेनर्स की दरामद की इजाजत है। हर स्मगल शुदा कंटेनर पर 40 से 50 लाख रुपए की करप्शन का भी इंकिशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुंह के कैंसर के मरीजों की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है। दूसरी जानिब सुपारी बनाने वाली बड़ी कंपनियां टैक्स नेट से बाहर हैं, जिससे कौमी खजाने को मजीद नुकसान पहुंच रहा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में सुपारी की 14 बड़ी और 200 छोटी फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, लेकिन अब तक की तहकीकात में सिर्फ एक रजिस्टर्ड फर्म का रिकॉर्ड सामने आया है। ज़राए का कहना है कि कराची समेत मुल्क भर में लाखों पान की दुकानें हैं, जहां मजरे सेहत छालिया और गुटखा खुले आम फरोख्त किया जा रहा है, जिससे अवाम की सेहत रोज बरोज खतरे में पड़ रही है। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट रिकॉर्ड फ्राहम न करने पर महकमे बल्दियात की लोकल काउंसिल्स के 14 अफसरान मुअत्तल। महकमे बल्दियात ने सूबाई वजीर की मंजूरी से अफसरान को मुअत्तल करके शोकॉज नोटिस जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बताते चलें, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट रिकॉर्ड फ्राहम न करने पर महकमे बल्दियात की लोकल काउंसिल्स के 14 अफसरान मुअत्तल। महकमे बल्दियात ने सूबाई वजीर की मंजूरी से अफसरान को मुअत्तल करके शोकॉज नोटिस जारी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर मीरपुर खास इस हवाले से टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर मीरपुर खास मुमताज़ अली चन्ना भी मुअत्तल हैं।
सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट रिकॉर्ड फ्राहम न करने पर महकमे बल्दियात की लोकल काउंसिल्स के 14 अफसरान मुअत्तल हैं। महकमे बल्दियात ने सूबाई वजीर की मंजूरी से अफसरान को मुअत्तल करके शोकॉज नोटिस जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता रहे हैं कि कुल 14 अफसरान के खिलाफ शोकॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट रिकॉर्ड फ्राहम न करने पर महकमा बल्दियात के लोकल काउंसिल्स के 14 अफसरान मुअत्तल हैं। आपको बताते चलें इस हवाले से कि सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट रिकॉर्ड फ्राहम न करने पर महकमा बल्दियात की लोकल काउंसिल्स के 14 अफसरान मुअत्तल हैं। महकमा बल्दियात ने सूबाई वजीर की मंजूरी से अफसरान को मुअत्तल करके शोकॉज नोटिस जारी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की उड़ान को ब्रेक लग गया। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1400 रुपये और 10 ग्राम सोना 1200 रुपये मजीद सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $17 सस्ता होकर $4235 फी औंस तक गिर गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी देखा गया। 1 तोला सोना 1400 रुपये कमी से 4,44,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1200 रुपये कम होकर 3,81,430 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 12 रुपये कमी से 5,261 रुपये पर आ गई है। गवर्नर हाउस में दिवाली का जश्न। कामरान खान टेसूरी की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। गवर्नर सिंध का कहना है कि दिवाली रोशनी, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नर हाउस में और गवर्नर हाउस में आज भी वो रिवायत बरकरार रही है कि अक़लियती बिरादरी का त्यौहार जो है वो जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी हिंदू बिरादरी के साथ जो है आज घुल मिल गए और दिवाली का त्यौहार जो है वो जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कामरान खान टेसूरी साहब बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस इसी वजह से जाना माना पहचाना जाता है, जो रौनक आपने लगा के रखी हुई है। अक़लियती बिरादरी के हवाले से आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि हमारे जो पाकिस्तान है इसका जो सफ़ेद रंग है ये अमानत है और यकीनन तौर पे इसकी आकाश है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जी पूरे पाकिस्तान में हिंदू बिरादरी के दोस्तों को मैं हैप्पी दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। रोशनी का त्यौहार है, चिरागों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। मेरी तरफ से तमाम हिंदू बिरादरी मुबारकबाद को कबूल करे। आज मैंने ख़ुद जो बात आपके सामने कही कि अक़लियतों का एहतराम जो पाकिस्तान में मौजूद है वो सब के सामने है। मैंने आज बताया कि पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस भगवान दास, पाकिस्तान के सबसे बड़े डिज़ाइनर संजय परवानी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो फिल्म मेकर सतीश आनंद और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के अंदर अक़लियतों के मिनिस्टर्स देखें तो वो हमारे अक़लियतों से हैं। मुख्तलिफ़ जमातों के अंदर अक़लियतों को एक मुनासिब नुमाइंदगी दी जाती है और इसीलिए आप देखें मेरी अपनी पार्टी में हमारे MNA जो हैं वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे MPs हिंदू बिरादरी से हैं, क्रिश्चियन बिरादरियों से। तो मैं समझता हूँ कि जो जो त्यौहार इनका आता है गवर्नर हाउस उसमें हमेशा आगे आगे होता है और आज भी आप देखें हमने इनके हज़ारों लोगों को इनवाइट किया है उनकी खुशी में शरीक होने के लिए। शुक्रिया शरीक होने के लिए। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे जी।